Good morning class. Our next topic is general solution and a particular solution. General solution ਨੂੰ primitive भी बोलते हैं और arbitrary constant भी बोलते हैं। ਹੁਣ देखो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਔਰ ਜਰਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਜਰਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਨ ਵਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ 0 ਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਆਂਸਰ 0 ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, 2 3 4 ਪਾਈ ਈ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਰਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟ ਮੀਨ ਆਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ a cos x ਮਾਈਨਸ b sin x ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ of the differential equation d square y upon dx square plus y is equal to 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਵਾਈ a cos x ਮਾਈਨਸ b sin x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈ ਆ, ਵਾਈ ਤੋਂ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स ही करन लगे हैं। ठीक है जी। ए कॉज एक्स, ए कॉज एक्स, तो डेरीवेशन की होएगी, कॉज एक्स की डेरीवेशन माइनस साइन एक्स, तो ए आ जाएगा नाल क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। दैन आ वाला माइनस एज इट इज़। हुण आ गया बी साइन एक्स, तो डेरीवेशन की बन जानी है, साइन एक्स का कॉज एक्स, तो की बन जाना मेरे को बी cos x। अदरवाइज तुसी ना तो u इंटू v भी लगा सकते हो, इधरली साइड भी u इंटू v, दैन माइनस पा के u इंटू v। ठीक है जी। आंसर थोड़े को यही मिलना। और ये सारी आप डिफरेंशिएट पिछे कर चुके हैं 6th चैप्टर च। ठीक है जी। सिंगल डेरीवेशन आ गई, बट मैंने चाहिए कि है जी डबल डेरीवेशन उन्होंने बोलिया होया है, तो आप अगेन डेरीवेशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो की हो जाएगा डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स, तो माइनस एज इट इज़ बिकॉज साइन एक्स का डेरीवेशन की होंगी है पॉजिटिव कॉज एक्स। ठीक है जी। दैन आ रहा इत्थे माइनस बी कॉज एक्स की डेरीवेशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, इन्नी चीज़ आ गई मेरे को, इन्नी चीज़ आ गई। हुण देखो माइनस ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही चीज़ बन रही है। हुण मेरे को जिहड़ी इक्वेशन पई सी वो चैक करते हैं आपां। मेरे को वाई की इक्वेशन की पई आ, ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स,
मतलब ए cos x पॉजिटिव आ माइनस बी साइन x नैगेटिव आ। ये की आ ਜਿਹੜਾ ए cos x ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਆ, b sin x ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ y ਸੀ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ y। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y ਦੀ ਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਲੈ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਮਾਈਨਸ y ਦੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਾਈਨਸ y। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਵਾਈ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a cos x ਮਾਈਨਸ b sin x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲੀਏ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। तो इसलिए मैं इत्थे की लिखता सी नैगेटिव। जां फिर तुसीं इस होर तरीका है कि इन्हां दे विचों माइनस कॉमन कर लो, y इज इक्वल टू अगर मैं ये पहली टर्म चो माइनस कॉमन कड्डूँगी, अंदर क्या जाना a cos x दैन माइनस b सॉरी प्लस b sin x। ठीक है, चेंज कर लो की हो जाना माइनस a cos x, नहीं माइनस ही आऊगा, माइनस सॉरी ब्रैकेट यूज़ करती, माइनस माइनस प्लस की बन जाना माइनस a cos x माइनस माइनस प्लस b sin x। ठीक है जी, तो ये वाला आंसर किहदा बन जाना मेरा फिर माइनस y का। आही सेम चीज़ बनी, थाडे इत्थे पॉजिटिव सी नैगेटिव सी तो y का आंसर सी, इत्थे नैगेटिव हो गया इत्थे पॉजिटिव हो गया, किहदा हो गया जी माइनस y का आंसर। ठीक है जी, मतलब आप जस्ट साइन चेंज करता, इत्थे मैं y लिखना, अदरवाइज इनू साइन नू देखो इत्थे माइनस आ जाना मेरा, मैं इत्थे y लिख देना सी, बट इत्थे की हो गया माइनस हो गया, तो मैं साइन चेंज हो गया ना सारे। तो जी पॉजिटिव y की इक्वेशन सी वो सारी फिर किहदी हो गई नैगेटिव y की इक्वेशन। ठीक है, बट हुण देखो उन्होंने की किया है कि सारी इक्वेशन एक साइड पर आ, तो इन्हें एक साइड पर कर लो, माइनस का y इहदे नाल की किहड़ा हो गया प्लस का y, दूसरी साइड पर की आ गया जी जीरो। हुण आ देखो आ सेम चीज़ बन गई। ठीक है, और उन्हें की इस इक्वेशन तो आप सारी सेम चीज़ बनाती, और उन्होंने की बोलिया सीगा कि y इक्वेशन इज़ अ सल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे को की सी जर्नल सल्यूशन भी गिवन सी और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन सी, जस्ट मैं स्टैप फॉलो किया कि चाहिए की है उन्होंने। ठीक है जी, पहले मेरे को इक्वेशन गिवन होएगी डन, उस तो बाद मैं इत्थे देखना कि इत्थे की गिवन आ, इत्थे मैंने उन्होंने डबल डेरीवेशन दी है, तो डबल डेरीवेशन मैं करूँगी। डबल डेरीवेशन तो पहला की आ सिंगल डेरीवेशन, फिर डबल डेरीवेशन, फिर उन्हें सारी इक्वेशन एक साइड पर रखती, आप लास्ट जाके सारी इक्वेशन एक साइड पर रख देंगे। फिर इत्थे देख लियो थानू इक्वेशन जी y आ वो पॉजिटिव नैगेटिव च, दैन जी थोड़ी इत्थे बन रही है वो नैगेटिव पॉजिटिव च बन रही है, मतलब जे पॉजिटिव की होएगी फिर इत्थे आके किहड़ी बन जाऊगी ये नैगेटिव की, दैन एक साइड पर रख देना इनू आपां। तो मेरे को प्रॉपरली आंसर बन लिया, मतलब जो भी उन्होंने जनरल सोल्यूशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो प्रॉपरली सही है। ठीक है जी, सेम देखो इस सम दे विच वेरीफाई इक्वेशन गिवन है इज़ अ जर्नल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इक्वेशन जर्नल इक्वेशन भी गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है। हुण देखो जो मैं इक्वेशन लिखूँगी मेरे तो की चाहिए, ये सिंगल डेरीवेशन भी चाहिए और डबल डेरीवेशन भी चाहिए। फर्स्टली किया मैं सिंगल डेरीवेशन कर दूँगी, उस तो बाद मैं की करूँगी डबल डेरीवेशन कर दूँगी, उस तो बाद सारी इक्वेशन नूं जां सारियां इक्वेशन के आंसरस नूं एक साइड पर रख लूँगी। ठीक है जी, और सानू पता ही है ना साइन कॉज लॉग ये वाली सारिया डेरीवेशनस आप कितने कह चुके हैं डिफरेंशिएट चैप्टर च, ही बोल रहे हैं कि 6th चैप्टर आना कंपलसरी है, वो कॉन्सैप्ट्स कंपलसरी है कि थानू हाँ आने ही चाहिए, समझ जो होण प्रॉपरली टिप्स तो होण तां ही तुसीं ये वाला चैप्टर कर सकते हो। ठीक है जी, सेम अगे भी जर्नल सोल्यूशन थानू गिवन होएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होएगी, चैक करना है थानू की चाहिए, डबल डेरीवेशन भी चाहिए है, सिंगल डेरीवेशन भी चाहिए है। तो इक्वेशन पई आ, पहले सिंगल डेरीवेशन कर दो, फिर डबल डेरीवेशन कर दो, फिर सारी इक्वेशन एक साइड पर रख दो। ठीक है जी, तो फिर सॉल्व आउट कर लो। सेम चीज़ा आप प्रोसीजर पिछे कीतियां, बस यह है कि हुण इन्होंने थानू थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सट्रा चीज़ पाती आ। डिफरेंशिएट करना सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा आ, बस यह है कि थानू जर्नल सोल्यूशनस वास्ते आ पए होए आ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंशियल इक्वेशन पई हुई है, बस दोनों सॉल्व आउट करके चैक करना कि सही है कि नहीं। नैक्सट देखो अपने आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सॉल्विंग द मैथड्स आ रही हैं। ठीक है जी, किहड़े आने आ वेरीएबल होमोजीनियस एंड लीनियर। फस्ट आप करते हैं कि वेरीएबल सैपरेबल,
ठीक है जी। वेरीएबल सैपरेबल अपन वेरीएबल्स पता है कि होंगे अपने एक्स डी एक्स वाई डी वाई, ठीक है जी। इन्हों सैपरेट करना, सैपरेट इन द सेंस एक्स के नाल डी एक्स रखना, वाई के नाल डी वाई रख देना, ठीक है जी। सैपरेशन ये होंगी कि एक्स के साइड मतलब की है वेरीएबल में जो सैपरेट करना कि एक्स वाली वैल्यू सारिया एक साइड पर, वाई वाली वैल्यू सारिया एक साइड पर। लगी समझ? सैपरेशन का मतलब वेरीएबल्स जोड़े होंगे वही एक्स वाई कि आप एक्स वालियां अलग कर देनिया, वाई वालियां अलग कर देनिया, दूसरी साइड रख देनिया, ठीक है जी। हुण इहनूं समझ ते किद्दां अप्लाई करना वो देखते हैं। हुण देखो इस समझ की होएगा मतलब वेरीएबल सैपरेशन दे विच की होना, अपने कोल डिफरेंशियल इक्वेशन दित्ती होएगी, आपां जर्नल सल्यूशन बनाना, ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन आपां नूं गिवन होएगी तो आपां उहदा की बनाना है, जर्नल सल्यूशन बनाना है, ठीक है। हुण देखो इस एक्सरसाइज के अंदर ना तुहाडे कोल सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स ही तुहानूं देखण नूं मिलना, डबल डेरीवेशन देखण नूं नहीं मिलेगी। जिवें आप पहले विच डबल डेरीवेशन करके आए ना, जिहड़ी हुण आह वाली एक्सरसाइज आ वेरीएबल सैपरेशन, इहदे विच तुहानूं सिर्फ सिंगल डेरीवेशन डी वाई अपॉन डी एक्स ही देखण नूं मिलेगा, ठीक है जी। फस्ट कॉन्सैप्ट की है एकदम बाय स्टैप आपां चलांगे, एक बारी ध्यान नाल सुन लो कि आपां की करना, डी वाई और डी एक्स वाली वैल्यूज़ नूं अलग अलग कर देना, सैपरेट करते वेरीएबल्स मतलब वाई वाले सारे अलग हो गए, एक्स वाले सारे अलग हो जाएंगे। उस तो बाद की करना, आपां इन्हां नूं इंटीग्रेट कर देना। जो आप इंटीग्रेट करना, मैं बोलिया से ना कि लास्ट वाली एक्सरसाइजां दे विच इंटैगरल चैप्टर यूज होना, जो आप इंटीग्रेट करना अपने को किया कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाना, मतलब जी डिफरेंशियल इक्वेशन आ इनू जो आप सैपरेट करन तो बाद इंटीग्रेट करांगे ना, उस तो बाद मेरे को जर्नल सोल्यूशन आ जाना, ठीक है जी। चलो हुण आपां करते हैं, करना किस तरह आ पहले देखो, मेरे को सारी इक्वेशन एक साइड पर पई हुई आ, ठीक है जी। इनू आप पहले सैपरेट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स आ वाली सारी प्लस की वैल्यू आ, 1 + वाई स्क्वेयर अपॉन वाई सारी प्लस की वैल्यू, दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा, सारी की सारी वैल्यू नैगेटिव हो जाएगी, ठीक है जी। हुण मैं की करना है कि डी वाई नूं और डी एक्स नूं सैपरेट करना है, मतलब वाई वालियां अलग और एक्स वालियां अलग करनियां, और ध्यान रखना है जो डी वाई और डी एक्स है ना, ये ऑलवेज तुहानूं डिनोमीनेटर दे विच ही मिलूगा, डिनोमीनेटर च नहीं जाऊगा, ठीक है। तो हुण चलो सैपरेट करो, सैपरेशन तो बाद की होना है, जी आ वाली सारी मेरी वैल्यू पई हुई आ इधर आ जाऊगी, वाई वालियां अलग करन लग्या मैं, जो मैं दसिया ना कि डिनोमीनेटर च कुछ नहीं आना, डी वाई भी डिनोमीनेटर च रहूगा, दैन डी एक्स भी डिनोमीनेटर च रहूगा, इसका मतलब की है डी वाई तो मेरा एज इट इज़ प्यार रह जाऊगा, ठीक है। वाई वाली वैल्यू सारी इधर आऊगी तो की होगा, जोड़ा वाई डिवाइड दे विच आ वो की हो जाएगा जाके उपर मल्टीप्लाई च, और जिहड़ी चीज़ मल्टीप्लाई च जाके की हो जाऊगी डिवाइड दे विच, इज इक्वल टू जोड़ा डी एक्स इधर पहुँच सी दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा माइनस दे नाल मल्टीप्लाई, सैपरेटिंग करती, ठीक है जी। सैपरेटिंग हो गई मेरे को। फस्ट कॉन्सैप्ट मैं की कर लिया सी कि अपने को की होएगी डिफरेंशियल इक्वेशन पेगी, ठीक है। जी डिफरेंशियल इक्वेशन पई होएगी उन्होंने मैं की करना है, जस्ट सैपरेट करना है कि मतलब वाई वालियां सारियां एक साइड ते, एक्स वालियां सारियां एक साइड ते। ਇਹਦਾ कॉन्सैप्ट की है जोड़ा मेरा डी वाई तो डी एक्स आ ये ऑलवेज उपर ही मिलूगा, नीचे नहीं आना, जिदा इतने डी एक्स नीचे से है ना, इन्होंने आप जो सॉल्व आउट किया वो की चल गया दूसरी साइड से उपर, सैपरेट करने तो बाद सैपरेशन वाला पॉइंट हो गया। सैपरेशन तो बाद मैं की बोली सी इंटीग्रेशन, तो हुण आपां की करना है, इन्हों इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। इंटीग्रेट करते हैं, हुण आ जाओ इंटीग्रेट की होएगा, आपां देख मोस्ट ऑफ की देखते होंदे सीगे कि नीचे वाले फंक्शन के उपर डेरीवेशन यही देखते होंदे सी। हुण जो मैं नीचे वाले फंक्शन की डेरीवेशन देखा आ तो 0 बन जाऊगी, दैन वाई स्क्वेयर का की हो जाऊगा 2y इंटू डी वाई, मतलब 2 अगे आ जाना, नाल वाई नाल की आ जाना डी वाई, ਇਹਦਾ मतलब क्या कि 2 तो मैंने ऊपर किते दिख नहीं रहा, तो मैं की करूँगी फिर 2 नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लैफ्ट साइड से, ठीक है जी। 2 नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो की हो जाएगा मेरे को 2 नाल डिवाइड करता इंटीग्रेट पाई और 2 दे नाल मल्टीप्लाई करता, ऊपर की पिया हुआ है जी वाई 1 + वाई स्क्वेयर, और डी वाई तो मेरे को चल ही रहा है, ठीक है। नाल की आ रहा है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स थी, तो मतलब डी एक्स के नाल कुछ नहीं है, मतलब डी एक्स के नाल की होगा ऑफकोर्स 1 होएगा,
ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪਈ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, 1 ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 0, ਦੈਨ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨੀ ਸੀ 2y ਇੰਟੂ dy। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ dy ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 2y/1 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ dy ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, log 1 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ log u ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 dx ਮਾਈਨਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ dx ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ x। ਹੁਣ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ x ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ 1 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੀ ਵਾਈ ਔਰ ਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ 2 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਵਾਈ ਔਰ ਐਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ tan ਸਕੁਏਅਰ x ਪਲੱਸ 2 tan x ਪਲੱਸ 5 ਇੰਟੂ dy/dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ tan x ਇੰਟੂ sec ਸਕੁਏਅਰ x। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ dy/dx ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ tan x sec ਸਕੁਏਅਰ x ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ 2 ਨੂੰ ਔਰ sec ਸਕੁਏਅਰ x ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 2 1 ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 2 tan x ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ sec ਸਕੁਏਅਰ x ਅਪੋਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ tan ਸਕੁਏਅਰ x ਪਲੱਸ 2 tan x ਪਲੱਸ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ sec ਸਕੁਏਅਰ x ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 sec ਸਕੁਏਅਰ x ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 2 tan x ਇੰਟੂ sec ਸਕੁਏਅਰ x ਅਪੋਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਆ tan ਸਕੁਏਅਰ x ਪਲੱਸ 2 tan x ਪਲੱਸ 5। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਆ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ। ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਆ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਂਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੌਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਯਾਦ ਆ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੌਗ ਮੋਡ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਓਕੇ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ
डी वाई वाले सारे एक साइड ते ਜਾਂ ਫਿਰ वाई वाले सारे एक साइड ते। ਹੁਣ देखो डी वाई वाला ये है, इधर किते वाई दिख रही है? नो, सारियाँ एक्सेस दिख रही हैं और इधर भी एक्स आ, तो एक्स वाले एक साइड ते वाई वाले एक साइड ते, तो डी वाई वाला सिंगल इत्थे रह जाऊगा। ठीक है जी। और मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि कुछ भी अपॉन च नहीं आना, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये कदे भी डिनोमीनेटर च नहीं आऊगे, ये डिनोमीनेटर च ही रहणगे। तो डी वाई इधर डिनोमीनेटर च पिया, दैन डी एक्स इधर डिनोमीनेटर च आ, उधर जाके मल्टीप्लाई होके की हो जाना डिनोमीनेटर च, तो की बन जूगा मेरा 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 2 सेक्स स्क्वेयर एक्स अपॉन tan स्क्वेयर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5 नाल की आ गया जी डी एक्स। इन्नी चीज़ हुई, इन्नी चीज़ हो गई। हुण नैक्सट स्टैप की सी जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है जी। हुण इंटीग्रेटिंग कर दो दोनों साइड ते। हुण डी वाई दे नाल कुछ नहीं है, इहदा मतलब की होएगा 1 होएगा। दैन दूसरी साइड ते 2 tan x सेक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 2 सेक्स स्क्वेयर एक्स अपॉन tan स्क्वेयर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो आही सेम बन गया, इंटीग्रेशन भी आ गई, नीचे फंक्शन भी आ गया, उपर फंक्शन की डेरीवेशन भी आ गई, नाल की आ गया जी डी एक्स। तो यदा सारे का आंसर की बन जाना लॉग फंक्शन प्लस सी। तो यदा क्या 1 डी वाई, ये इंटीग्रेशन की हो जाएगी, जे इतने एक्स मतलब 1 डी एक्स होंदा तो एक्स आ जाना सी। हुण 1 डी वाई विद रिस्पैक्ट टू वाई डेरीवेशन हो रही, सॉरी इंटीग्रेशन हो रही है, तो आंसर इज़ वाई। आ वाली सारी चीज़ तो आ वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, तो कि जाना लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, फंक्शन केड़ा है जी आ वाला tan स्क्वेयर एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 5 नाल की आना जी प्लस कॉन्सटेंट। मेरे को की आ गया जी रिक्वायर्ड सल्यूशन। मैथड की आ, फस्ट ऑफ ऑल अपन गिवन की होएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होनी आ। ठीक है जी। उन्होंने मैं थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करूँगी, सिंपलीफाई करने तो बाद नैक्सट स्टैप की है मेरा सैपरेशन का, सैपरेट करने तो बाद इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन करके सॉल्व आउट हो जाना वो मेरे को की जाना रिक्वायर्ड सल्यूशन। लगी समझ? स्टैप मेन पता चलिया कि पहले थोड़ा जिहा सिंपलीफाई, मेन किया सैपरेशन, सैपरेशन तो बाद किया जी इंटीग्रेशन, बस 2 स्टैप आ। ठीक है जी। और इस एक्सरसाइज के विच तुहानूं सिर्फ सिंगल डेरीवेशन ही देखने को मिलनी है, जस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स ही देखने को मिलेगा, किते भी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर डबल डेरीवेशन देखने को नहीं मिलनी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी गल की आ कि ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਉਹਦਾ ਕੀ फाइंड करना है रिक्वायर्ड सल्यूशन, ਉਹਦੀ जर्नल फॉर्म, मतलब जर्नल सल्यूशन ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ फाइंड करना एंड ते। जिद्दां पहले दे विच आपां नूं जर्नल सल्यूशन भी गिवन सीगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी सी, आपां जस्ट चैक करना सी कि सही आ। ठीक है जी। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कि ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होएगी सिर्फ, ठीक है। दैन ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सैपरेट करन तो बाद फिर इंटीग्रेट कर देना, दैन जर्नल सल्यूशन फाइंड कर देना। गल समझ लगी? जस्ट मेन 2 स्टैप आ, बस ये आ कि हुण तुहानूं जिद्दां पहले च दस्सिया सीगा डिफरेंशिएट वाला चैप्टर आना जरूरी आ, कॉन्सैप्ट क्लीयर जरूरी आ, और ये तुहानूं किहड़े चैप्टर्स इंटीग्रल के चैप्टर्स के कॉन्सैप्ट जरूरी आ, बिकॉज आ वाली सारियां चीज़ां तुसीं पिछे करके आए हुए हैं। आ वाले फॉर्मूलाज आप पिछे पढ़े आ। दैन जी फस्ट एग्जाम्पल करके हटे सीगे कि उपर 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड करवाया, वो सारियां चीज़ां आप पिछे पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। ये नवीं चीज़ क्या है कि तुसीं सैपरेट किया, दैन इंटीग्रेशन थोड़ी पुरानी चीज़ आ। लगी समझ? हाँ जी। नैक्सट देखो बई रूल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी फंक्शन गिवन होएगा, फंक्शन के अंदर ठीक है जी जी आ वाली सारी टर्म होएगी उन्होंने आप की मान लेना टी पुट कर देना। फिर नैक्सट की है जी सैपरेट कर दो, उस तो बाद आप मतलब वेरीएबल्स में सैपरेट कर देना, उस तो बाद की करते हैं आप इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने तो बाद जोड़ा भी आंसर आऊगा वो सारा फिर टी च ही आना आ। दैन ठीक है जी टी नूं आप अगेन वापस जो पुट किया सीगा लास्ट सल्यूशन च उही पुट कर देना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि मेरे को अगेन की होगा, मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होएगी, मैं उन्होंने सॉल्व आउट करना है पुटिंग करके, सैपरेट करके और इंटीग्रेट करके। नवा स्टैप की आया जी पुट करने वाला। ठीक है जी। दैन फिर पुट करके आप सैपरेट कर देना है, दैन फिर इंटीग्रेट कर देना और आप रिक्वायर्ड सल्यूशन बना लेना अगेन। फस्ट सम देखो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन पई आ कॉज एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। हुण इहदे विच आपां पुटिंग करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल मैं पुट किहनूं करूँगी,
एक्स प्लस वाई ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਟ एक्स प्लस वाई कुछ भी पुट कर दो, आप Z पुट कर लें। नैक्सट आपको पता है जो आप पुट करते हैं उस बाद आप की करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है जी। डिफरेंशिएट कि करते हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कर दो की हो रहा है एक्स, ठीक है जी। जो तुम इनू डिफरेंशिएट करोगे एक्स मेरा की बन जाना 1 प्लस वाई नू डिफरेंशिएट करन लगे हैं तुम एक्स नाल, तो की बन जाना dy/dx, ठीक है जी। दैन इधर तुम Z नू डिफरेंशिएट करोगे एक्स ना, की बन जाना dz/dx, इन्नी चीज़ बन जाऊगी। हुण देखो मैं वाई वाली टर्म्स नू अलग करन लगी हाँ, दैन एक्स तो इन्हां नाल dx दोनों नाल चल रहा है, ठीक है। तो Z वाली अलग कर देंगे, तो मैं ये की करन लगी हाँ dy/dx dz/dx जिहड़ा +1 सी उधर जाके की हो गया मेरे को -1। मैं इदा क्यों किया, क्योंकि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कटी, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप ये ना dy/dx पिया होया है, दैट्स वाई मैं dy/dx का थोड़ा जहा सोल्यूशन सिंपल कढ़िया, ठीक है, कि मैं इत्थे पुट कर सकां, दैन फिर आप इस सोल्यूशन को अगे कंटिन्यू कर सकीए, ठीक है जी। इसलिए मैं dz/dx नहीं रहने दिता, क्योंकि मेरे को इत्थे dy/dx सी, इसलिए फिर मैं जो 1 इधर से dy/dx ना उस टर्म में मैं दूसरी साइड पर लै जाता, ठीक है जी। आप दूसरी साइड पर लै गए, हुण मेरे को की बन गया dy/dx कि आ रहा dz/dx -1 दे, ठीक है। तो इस चीज़ में dy/dx की वैल्यू में आप कि पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1, इनू इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है जी। तो आ वाली भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ना dy/dx, दैन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बिकम्स की बन जाऊगी, आवली इक्वेशन की बन जाऊगी हुण dy/dx की जगह तो मैं की पुट करन लगी हाँ dz/dx -1, ठीक है। दैन cos इज इक्वल टू cos x प्लस वाई की पुट करिया सी आपां z प्लस साइन x प्लस वाई आप की पुट करिया सी जी z, इन्नी चीज़ पुट करी सी। हुण अगेन -1 आ दूसरी साइड जाके की हो जाएगा जी +1 dz/dx cos z प्लस साइन z +1, इन्नी चीज़ हो गई। हुण आ गया कि पुट करन तो बाद मतलब पहला स्टैप से पुट करन तो बाद इन्ना क सिंपलीफाई होया, उस तो बाद की सी सैपरेट द वेरीएबल्स। हुण मैं किया वेरीएबल्स नू सैपरेट करूँगी, तो ये तुहानूं किहड़े वेरीएबल्स दिख रहे हैं, एक Z वाले एक X वाले, ठीक है जी। तो Z वाले सारे एक साइड पे, X वाले सारे एक साइड पे, तो इधर की आ जाना मेरा dz, आ वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई चा दूसरी साइड जाके की हो जाएगी dz ना डिवाइड cos z प्लस साइन z +1 इज इक्वल टू dx डिवाइड चा दूसरी साइड जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। मतलब ऊपर चले जाएगा। और थानू ये गल दसी हुई है कि dz dx dy जिहड़ियां भी आईयां सारियां टर्म्स आ डिफरेंशिएट दियां, ये सारियां डिनोमीनेटर च आउणगियां, डिनोमीनेटर च नहीं आउणगियां, ठीक है जी। इन्नी चीज़ समझ लगी। अपना वेरीएबल सैपरेशन भी हो गई है। नैक्सट स्टैप की सी इंटीग्रेट, हुण की करना इन्हों इंटीग्रेट कर देना, मतलब इत्थे की हो गया कि सैपरेटिंग तो हो गई है जी, हुण की आ जाना इंटीग्रेशन, ठीक है जी। हुण आ जाओ इंटीग्रेशन ते, तो की बन गया dz/cos z प्लस साइन z +1 इज इक्वल टू dx आ dx के नाल कुछ नहीं है, तो इसका मतलब की होएगा 1 dx। इन्नी चीज़ समझ आई। हुण इसनूं किद्दां सॉल्व करना, हुण जिहड़ी आ वाली चीज़ आ वाला कॉन्सैप्ट आ ये आपां पढ़ चुके हैं +1 दी ट्रिग्नोमैट्री च, ठीक है। वो cos 2a प्लस साइन 2a का फॉर्मूलाज पढ़े हुए आ, ठीक है जी। वो cos 2a हुंदा सीगा, मतलब डबल एंगल हुंदा सी, ये की आ रहा तुहाडे कोल सिंगल एंगल, मतलब हाफ आ रहा वह, तो फॉर्मूला भी तुहाडा सारा हाफ च हो जाएगा। याद आ, चलो एक बारी देख लो फिर। अपने को फॉर्मूलाज होंगे सी cos 2a, cos 2a का की होंदा सी 1 - tan square a अपॉन 1 + tan square a। दैन sin 2a का फॉर्मूला की होंदा सी जी 2 tan a 1 + tan square a, ठीक है जी। हुण ये 2a होंदा सीगा, बट हुण मतलब Z हो गया, A हो गया, B कुछ भी इत्थे थिटा आ जाए तो एंगल्स आ ना, वो तो एंगल्स ही रहने, बट यह है कि हुण मेरे को की आ रहा है cos z और साइन z, मतलब हाफ एंगल हो गया।
इत्थे 2A ਜਾਂ फिर 2 थीटा ਜਾਂ 2 एंगल सी और इत्थे कितना आ रहा जस्ट 1 एंगल मतलब हाफ हो गया। तो फिर फॉर्मूले का भी हाफ कर देंगे। ठीक है जी, फॉर्मूले का की हाफ बन जाना 1 माइनस tan स्केयर ए आ जी मतलब Z/2 हो जाएगा बिकॉज एंगल Z आ 1 प्लस tan स्केयर Z/2 सेम साइन Z का फॉर्मूला की बन जाएगा 2 tan Z/2 1 प्लस tan स्केयर Z/2 आ तुसी ट्रिग्नोमैट्री +1 फॉर्मूलाज किए आ। ठीक है जी, तो ही मैं कह रही हाँ कि हर चीज़ याद रखो मतलब बार बार रिपीट करनी पै रही है। ठीक है, दैन ये 2A सी इत्थे जाके अपने एंगल्स हाफ हो गए, दैन इत्थे भी सारे फिर एंगल्स की हो जाने अपने हाफ यूज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, हुण उही मेरे को जो भी बन रहा है dz/cos z + sin z + 1 बन रहा है इंटीग्रेशन च। ठीक है, तो उत्थे आप आवलियां वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन चाही बन रहा ना dz/cos z + sin z + 1। ठीक है जी, दूसरी साइड की बन रहा है 1 dx। तो हुण आह वालियां चीज़ां दी आपां इत्थे फॉर्मूलाज कढ ले, इन्होंने इत्थे पुट कर सकते हैं। यस, तो पुट कर दो dz एज इट इज़ cos z तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर Z/2 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2 फिर क्या आ रहा प्लस sin z का की फॉर्मूला 2 tan Z/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2 नाल क्या आ रहा जी +1। दैन दूसरी साइड की आ रहा 1 dx। ठीक है जी, यही बन रहा है। हुण नैक्सट की हो सकता है एलसीएम ले लीए dz/1 माइनस tan स्क्वेयर Z/2 एलसीएम मेरा की नाम 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2 दोनों साइड एलसीएम सेम है मतलब ऊपरली टर्म 1 माइनस tan स्क्वेयर Z/2 प्लस 2 tan Z/2 आ जाऊगा। दैन इधर की आ रहा है +1। ठीक है जी, दूसरी साइड की हो रहा है 1 dx। हुण जो मेरा +1 आ 1 प्लस tan Z/2 नाल की हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जो एलसीएम इकट्ठा लेना, तो की बन जाएगा dz/1 माइनस tan स्क्वेयर Z/2 प्लस 2 tan Z/2 दैन आ वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई बनते नाल 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2 अपॉन की आ गया जी 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2। दूसरी साइड की आ रहा 1 dx। ठीक है जी, हुण एलसीएम आ 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2 ऊपर चले जाएगा dz के नाल चले जाएगा। ठीक है जी, तो की हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2 इंटू डी। ठीक है जी, हुण नीचे देखो माइनस दा आ। ठीक है जी, प्लस दा आ कैंसल हो सकता 1 + 1 की हो गया जी 2 नाल की बच गया +2 tan स्क्वेयर सॉरी Z/2 इधरली साइड की हो गया जी 1 dx। इन्नी चीज़ समझ लगी। ठीक है, हुण नीचे वाली चो टर्म चो कॉमन कढ़ लो 2 कॉमन कढ़ लिया तो कितना हो गया जी मेरा 1 प्लस tan स्क्वेयर Z/2 dz एज इट इज़। नीचे की बच गया 1 प्लस tan Z/2 2 कॉमन कर लिया तो। ठीक है जी, इधरली साइड की बन गया 1 dx। ठीक है, हुण जो मेरा 1/2 आ ये तो उपरों भी आई सकता ना मतलब ऊपर इत्थे भी लिख दूँगी तो कोई चक्कर नहीं आ। क्यों, क्योंकि जो तुसी फिर इस चीज़ की डेरीवेशन बनानी आ फिर थानू पता लगता पहली दी थानू फॉर्मूला पता 10th का 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा किहदे कोल हुंदा इज इक्वल टू sec स्क्वेयर थीटा। तो ये जगह तो वो चीज़ पुट कर सकते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा किहदे कोल हुंदा है जी sec स्क्वेयर थीटा दे। 10th वाले फॉर्मूलाज मतलब वही है ट्रिग्नोमैट्री के फॉर्मूलाज तुहानू ट्रिग्नोमैट्री तुहानू दस्सिया ना कि +1 तो जो शुरू हो जाती है कि हाँ जी चली जानी हर चैप्टर जानी आ। ठीक है जी, +2 चली जानी है तो कॉन्सैप्ट्स क्लीयर होने चाहिए। तो नैक्सट की आ रहा यदा मेरा की बन जाऊगा sec स्क्वेयर थीटा की है जी Z/2। हुण जो 1/2 है इन्हू मैं उपर मल्टीप्लाई लिख सकती हैं ना नाल बिकॉज जे मैं बाहर भी कड्डूँगी तो 1/2 ही रहना। नाल की साइन आ रहा जी इंटीग्रेशन का उपर की हो रहा जी नाल dz तो नीचे की आ रहा 1 प्लस tan Z/2। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल सोचो कि मैं आ वाली चीज़ सेम ही अगर मैं फिर बाहर कड्डूँगी वापस इद्दां लिख हो जानी बट मैं इत्थे क्यों रखी।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੌਗ ਮੋਡ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ 1 ਪਲੱਸ tan z/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ 1 dx। ਤਾਂ 1 dx ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x। ਔਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ x+y ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਲੌਗ 1 ਪਲੱਸ tan ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ x+y/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਡ ਖਤਮ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ x+c। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਪਰੇਟ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਪਰੇਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਐਲਸੀਐਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਗੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 + tan² θ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ sec² θ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ x+y ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਟੈਪ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।